Good evening, friends. Today we are starting a lecture on real numbers. Myself, Abhishek Kumar. I teach in academia, and today we will have a broad view of the chapter called real numbers. Real numbers is a chapter in class 10th. What is real numbers? This is the first question. But before moving to the topic, I would like to explain about the institute. Our institute is academia. We mainly teach for class 10, 12, and Olympiads. And we teach in the direction of competitive exams. We will be going to start chapters of class 10 module wise. And the first module, which is the most important module, is real number. Real number comes under number system. And the first and foremost question which comes while we study real number is what is real number? What is real number? Real numbers are the numbers which are present in reality. In Hindi, we can say Vastavik Sankhya. Now, we know that real numbers are a composition of many numbers, and we can categorize, classify it into various numbers. One by one, we will write down those numbers. If we talk about types of real numbers, then starting from the natural number, we move to whole number, then we have integers, and we know that integers are the composition of whole numbers, natural numbers, and they also have the negative part of the natural numbers. That is, minus sign is included in natural numbers. Simultaneously, we have a zero as well. Now, moving from integers to rational numbers and irrational numbers and irrational numbers. There is another definition for real numbers, and it is a very small definition. Real number is a collection of rational numbers and irrational numbers. Real numbers are collection of rational numbers and irrational numbers. Irrational numbers. Irrational numbers. Now, as soon as we state rational numbers, we can see that it should it is having a definition. It is having a definition. So let's talk about those definitions. Let's talk about the single definition of rational numbers. And if we write it, rational number are
numbers having the form p by q. So this is one line of the definition. Now, p and q, what are they? They are integers, where p and q are integers, and we know the symbol for integers is I. Sometimes we write z as well. And a small thing I want to state, if we have I plus, that means positive integer. If we have an I minus, that means negative integer. If we have a z plus, it means positive integer. If we have a z minus, it means a negative integer. So now we know the definition of rational numbers. Let's move to irrational numbers. What are the irrational numbers? Irrational numbers are just the opposite of rational numbers. So irrational numbers are the numbers having the form, are the numbers not having the form p by q, and where p and q are integers. And one more thing, q is not equal to 0. Q is not equal to 0. So let's write irrational numbers. Irrational numbers are numbers not having p by q form, p by q form. Again, we have to write where p and q are integers and q is not equal to 0. So we discussed two definitions majorly, and those definitions are rational numbers and irrational numbers. Now, let's write some examples, and there are many examples. I will write one integer and I will show that it is a rational number. Suppose this 1. This looks that it has only numerator, but it has a denominator as well. 1 can be written as 1 by 1. 1 हिंदी में एक. Now 1 by 2. So we can see, we can write 1 by 1 for 1 and 1 by 2 is 1 by 2, and now we can note down the p and q. So what is p in this case? 1. Q in this case 1. What is p in this case? 1. Q in this case 2. This is 2. So this is an example of rational number. This is also an example of rational number. Now let's move to irrational numbers. Root 2, root 3, root 4. We're talking about the prime number, composite number, odd number, even number. And we also have various other types of numbers, like we have decimals, we have fractions, and there are many types of numbers. In many ways we can define numbers now. So we have discussed the types of real numbers. Now we will see those topics, which topics are the most important topics. We will discuss real numbers in 4 modules. Now we will note down the modules. So we have 4 types of modules. The first module will be the Euclid's division lemma. Second module will be
fundamental theorem of arithmetic. Third module will be rational and irrational numbers, and fourth module will be related to some concepts, some miscellaneous things, some things which we have read in past. Now, let's note it down. The first module will be related to Euclid's division lemma. Or Euclid's division algorithm, fundamental theorem of arithmetic. This is our chapter 1. So this is 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. This is 1.2, 1.1, 1.2, this will be 1.3, and this will be 1.4. Okay, so this is our chapter 1 and we have 4 modules in it. Maximum we will do 10 problems related to each and every module, and simultaneously I will give you 5 assignment questions, sometimes 6, sometimes 7, but mostly our lecture will be dependent on 10 numericals and 5 assignment questions. 5 assignment questions. Before studying this, I would like to suggest you some reference books. We will be concentrating on NCERT, R.S. Agarwal, Concise, which is related to ICSE syllabus, and Pearson book for Olympiads. So our reference books will be NCERT, Maths Class 10, R.S. Agarwal, Concise Math, and fourth will be Pearson's Maths for Foundation, IIT, and okay, so these are the 4 reference books and we will try to concentrate. But before reading all those books, we have to complete NCERT. NCERT, you know what is NCERT? It is National Councils of Education and Research Training. So this book is the most important book. Almost all boards now follow this book and we should try to finish this book. Okay, so we have discussed reference books. Now we will slowly move to our first module, Euclid's division lemma.
will have a thorough discussion of Euclid's division lemma. Our heading is Euclid's division lemma, and this Euclid's division lemma will be discussed on the basis of some tables. So let's start some table. अभी हम देखेंगे बच्चों कि हम लोग एक चार्ट बना रहे हैं और उस चार्ट में देखेंगे कि वेरिएशन कैसे हो रहा है, नंबर्स कैसे कैसे अपना रूप बदल रहा है। ठीक है, देखिए चार्ट, ये आपका चार्ट है। तो बच्चों देखिए गिनती लिखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब देखिए बहुत साधारण सा एक काम है जो हम लोग करना है इसमें, और उस काम को कैसे करना है उसके बारे में हम लोग आप मान लीजिए कि 2 का टेबल लिख रहे हैं, मान लीजिए कि आप 2 का टेबल लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 into 1 प्लस 0 आ रहा है, 2 into 1 प्लस 1 आ रहा है। फिर देखिए यहाँ 2 into 2 प्लस 0 आ रहा है, 2 into 2 प्लस 1 आ रहा है। देखिए बच्चों कुछ पैटर्न देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कुछ पैटर्न, आप इस पैटर्न को देख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 into 3 plus 0, 2 into 3 plus 1, 2 into 4 plus 0, 2 into 4 plus 1, 2 into 5 plus 1। किस चीज का टेबल है ये टेबल है 2 का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेबल 2। जरा ध्यान से देखिए, जो यूक्लिड्स डिवीजन का फॉर्मूला कहता है, जो अभी तक हमने देखा नहीं, उस फॉर्मूला को याद करने से बेहतर है कि पहले हम इस मल्टीप्लिकेशन टेबल को देखें और इस मल्टीप्लिकेशन टेबल को देख के समझने की कोशिश करें। देखिए बच्चों आपने एक चीज गौर किया होगा कि ये जो 2 है वो तो समान है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये देखिए ये 2 है, इस 2 को आप देख पा रहे हैं, क्या इसमें चेंज हुआ? नहीं हुआ चेंज। फिर देखिए इसमें आप चेंज देखिए, 0 फिर 1 फिर 2 बार 2 फिर 2 बार 3 फिर 2 बार 4 फिर 5, इस तरह चल रहा है। फिर आप यहाँ पैटर्न देखिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, सॉरी यहाँ पे 0 होना चाहिए था, 0। ठीक है, एक बार हम इसी तरह से 3 का टेबल देखते हैं, तब हम जजमेंट कर पाएंगे। ध्यान से देखिएगा इन 2 टेबल्स को।
तो आप नंबर्स को लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 लिखते जाइए नंबर्स, सोचना नहीं है, लिखते जाइए, साधारण सी बस गिनती लिखनी है। ये बहुत सिंपल काम है, सिंपलेस्ट वर्क। अब यहाँ टेबल ऑफ 2 लिखा है, यहाँ पे टेबल ऑफ 3 लिखेंगे। चलिए यहाँ आप लिख सकते हैं 3 इंटू 0 प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, 3 इंटू 0 प्लस 2, 3 इंटू 0 प्लस सॉरी 3 इंटू 1 प्लस 0, 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 इंटू 2 प्लस 0, 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 इंटू 3 प्लस 0, 3 इंटू 3 प्लस 1। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पे आपको 3 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए जीरो का पैटर्न कैसे, ये 0 है, यहाँ पे 1 है 3 बार, फिर यहाँ पे 1 है 3 बार, फिर यहाँ पे 3 है, इस तरह 3, फिर यहाँ पे देखिए आप 1 है 2 0, 1 है 2 है 1 है 2 है 0, एक पैटर्न देख रहे होंगे आप। तो इस वाले में और उस वाले में देखिए कंपैरिजन, यहाँ पे देखिएगा आपको 2 आपको दिख रहा है 2, आपको दिख रहा है 2, और आप यहाँ देखिए कि ये 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, 2 कभी नहीं हो सकता। इस केस में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 3, तो ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, पर 3 किसी भी केस में नहीं। तो ये बता रहा है कि ये जो है रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर कभी भी 2 नहीं हो सकता, और यहाँ बता रहा है कि रिमाइंडर 3 नहीं हो सकता। तो अगर इसी तरह से आप टेबल लिखेंगे 4 का, तो आपको रिमाइंडर 3 नहीं मिलेगा। 5 का लिखेंगे तो आपको रिमाइंडर 4 नहीं मिलेगा। 6 का लिखेंगे तो आपको रिमाइंडर 5 नहीं मिलेगा। इस थॉट प्रोसेस से हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट फॉर्मूला लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, और उस फॉर्मूला के बेस पर हम सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। सारा क्वेश्चन सिंबॉलिक फॉर्म में होगा, सारा क्वेश्चन वेरिएबल के फॉर्म में होगा, और उन वेरिएबल्स को यूज करते हुए हमको बहुत सारे डिडक्शंस करने हैं, डेरिवेशंस करने हैं, थ्योरम्स करने हैं। ओके, यस। तो हम अब देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। तो हम देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कैसे है और किस बेसिस पे। तो पहले हम उसका बेसिस देख लेते हैं। ओके, तो ये आप देख रहे हैं टेबल 2 और टेबल 3, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जस्ट फ्यू सेकेंड्स। फिर से बोल रहा है, वीडियो चल रहा है सर। हाँ वो बोल रहा है ना, स्पेस नहीं। हमारे कुछ देर में प्रॉब्लम हो गया था, फिर रुक जाएगा वीडियो, बताऊंगा। चलिए, तो ये हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या है, फॉर्मूला का है क्या है। और फॉर्मूला लिखने से पहले हम बेसिस देखते हैं, और बेसिस है कुछ ऐसा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जिसको एक फॉर्म में लिखा जाता है a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। और यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि a जो है वो डिविडेंड है। ठीक है, तो a क्या है ये आपको दिख रहा है, पर आपके आसानी के लिए मैं इसको नोट डाउन कर देता हूं। a है डिविडेंड, b क्या है, b है डिवाइजर, q for quotient and r for, कैपिटल में लिख रहे हैं तो कैपिटल में ही लिखेंगे।
तो बच्चों अब इसके बाद चलेंगे हम लोग, ठीक है, स्टार्ट चल रहा है क्या? अच्छा लग रहा है। चल रहा है पक्का? चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ईडीए। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के बारे में हमने डिस्कस किया कि एल्गोरिथम क्या होता है, कुछ स्टेप्स होता है जिसके थ्रू हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टेप्स होता है या प्रोसीजर होता है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। अब देखना है हमको कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा यूज जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का है वो एचसीएफ कैलकुलेशन में है। तो यहां हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एचसीएफ। हम एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं इससे। एचसीएफ विच इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो आपको दो नंबर चाहिए। लेट अस टेक C एंड D, ठीक है, ये C है और ये D है, और C एंड D आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो वेयर C एंड D आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं I प्लस से, ये हो जाएगा I प्लस पॉजिटिव इंटीजर। आपने देख लिया कि ये C और D पॉजिटिव इंटीजर है। अगर लगे तो आप यहाँ पे एस्टेरिस्क डाल सकते हैं और यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमास डाल सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि C और D दो पॉजिटिव इंटीजर है। और अब हम यूज करेंगे लेमा को, और हम लेमा लिखना आता है हमें। लेमा होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे C और D दिया हुआ है, C और D दो नंबर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे C जो है D से बड़ा होगा, ध्यान देंगे C जो है D से बड़ा होगा, C ग्रेटर देन D। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेमा लिखेंगे। तो C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। हमको पता है R जो है वो 0 से बड़ा होगा और D से छोटा होगा। तो ये हमारा लेमा है। पहला काम क्या है ये देखते हैं। पहला स्टेप है हमारा, आपको पता है कि ये जो एल्गोरिथम होता है वो डिफरेंट स्टेप्स होता है। तो पहला स्टेप है C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन D। दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप क्या कहता है, इफ आर इक्वल टू 0, ठीक है, तो डिवाइजर विल बी द एचसीएफ। और इस केस में डिवाइजर क्या भाई, डिवाइजर D है, तो D विल बी द HCF, therefore D will be the HCF। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अगर स्टेप 2, if R is not equal to 0, then continue the process। तो आप लेमा कैलकुलेट करते जाएंगे, ओके, लेमा कैलकुलेट करते जाएंगे और फिर आपको फाइनली अगर R इक्वल टू 0 मिला तो जो डिवाइजर होगा वो HCF होगा। तो थर्ड स्टेप के बाद हम फोर्थ स्टेप पे जाएंगे। स्टेप 4। तो स्टेप 4 पे हम लोग जाएंगे और स्टेप 4 देखेंगे हम लोग। तो स्टेप 4 कहता है फाइनली इफ R इक्वल टू 0 देन D विल बी HCF। तो दो पॉजिटिव इंटीजर को लिए और दो पॉजिटिव इंटीजर में से हमने देखा कौन सा बड़ा है, जो बड़ा है
वो डिविडेंड हो जाएगा, जो छोटा है वो डिवाइजर हो जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं सी क्या है, डिविडेंड है, डी है डिवाइजर, क्यू है कोशिएंट, आर है रिमाइंडर। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं बच्चों, ए जो था वो डिविडेंड था, इस केस में हमने सी लिया है इसलिए सी डिविडेंड है। बी जो था वो डिवाइजर था, इस केस में हमने डी लिया है इसलिए डी डिवाइजर है। ठीक है, तो ये तरीका है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एचसीएफ को बच्चों। तो डी स्मॉल डी हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इन प्रोसेसेस के थ्रू चलेंगे हम, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और फाइनली हमको एचसीएफ मिल जाएगा। एचसीएफ होगा डी। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वन बाय वन हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन 1, 2, 3 और तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर 3m और 3m+1। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा के बेसिस पे। पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन 1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू show that the square of a positive integer can be written as 3m or 3m+1 where m is integer. Where m is integer. इसको आप देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेमा लिखेंगे और हम लोग चेक करेंगे किस तरह का लेमा हो सकता है। तो यहां पे देखते हैं, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी इंटीजर के लिए हम कौन सा लेमा ले सकते हैं, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरह का लेमा लेंगे। देखिए हम लोग अलग अलग तरह का लेमा ले सकते हैं, जैसे a = 1m+0, ये पहले तरह का लेमा है। दूसरे तरह का लेमा है दूसरे तरह का लेमा है 2m+r। तीसरे तरह का लेमा है 3m+r। चौथे तरह का लेमा है 4m+r। तो ऐसे ढेर सारा हम लोग लेमा यूज कर सकते हैं। अभी आपको यहां पे 3 दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। तो आपको जब यहां पे 3 दिख रहा है तो आप जब लेमा लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको 3 मिलना चाहिए। तो आप ये लेमा लेंगे क्योंकि यहां पे भी 3 है। अब देखिए ये लेमा कैसा है।
याद होगा कंडीशन, यहां पे कंडीशन लिखिएगा आप, तो r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 2 होगा। तो यहां पे 3 तरह का आपको डिविडेंड मिलेगा, 3m प्लस 0। बच्चों यहां पे m के जगह पे q लिख दें। तो क्वेश्चन 1 का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पे हमको एक लेमा लिखना होगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो कौन सा लेमा लिखे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ लेमा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम डिविडेंड कैसा लिखेंगे उस पर हमको ध्यान देना है। तो अगर हम b को 1 रख लें तो a इक्वल टू 1q प्लस आर हो जाएगा। b को अगर हम 2 रखें तो a इक्वल टू 2q प्लस आर हो जाएगा। b को अगर हम लोग 3 रखें तो a इक्वल टू 3q प्लस आर हो जाएगा। इस लेमा को हम लोग लेंगे क्योंकि यहां पर 3 है, ध्यान दें यहां पर 3 है तो यहां पे भी 3 है। तो हम इस लेमा को यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आपने कंडीशन पढ़ा था रिमाइंडर का, तो रिमाइंडर का कंडीशन यहां पर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, क्योंकि b2 है। यहां पर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0, क्योंकि यहां पे 1 है। तो इस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 0 बड़ा अनडिफाइंड कंडीशन है, अनडिफाइंड कंडीशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत कम जगह आपको मिलेगी। आप इस चीज को सोचना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको पता चलेगा कि r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है लेकिन 0 से छोटा है या 0 नहीं है, 0 से कम है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। दिस केस इज अनडिफाइंड फॉर द केस ऑफ रिमाइंडर। तो b इक्वल टू 2 ठीक है, b इक्वल टू 3 ठीक है, a इक्वल टू 3q प्लस r है और इसका कंडीशन है r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2। तो बच्चों इस कंडीशन को हम उठाएंगे, ध्यान देंगे, ये कंडीशन हमारा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस कंडीशन को उठाएंगे a इक्वल टू 3q प्लस r और a इक्वल टू 3q प्लस r को हम लोग यूज करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर ध्यान देंगे आप, यहां लिखा हुआ है स्क्वायर, तो वी नीड ए नंबर which when squared gives 3m and 3m plus 1। ऐसा ही होगा बच्चों, 3m या 3m plus 1 मिलेगा। नाउ लेट a इक्वल टू a स्क्वायर, तो a को a स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, तो इफ a इक्वल टू 3q, ये क्यों है, क्योंकि यहां पर से हमको 3 तरह का a मिलेगा। यहां पे मिलेगा a इक्वल टू 3q, a इक्वल टू 3q प्लस 1, a इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, तो हम उठाते हैं 3q को और वहां पे लिखते हैं। तो इफ a इक्वल टू 3q, तो a विल बी a स्क्वायर एंड a स्क्वायर विल बी 3q का स्क्वायर। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से, ये 3q का स्क्वायर है और जब इसको स्क्वायर कर देंगे तो 9q स्क्वायर मिलेगा, हमें 9q स्क्वायर मिलेगा। और 9q स्क्वायर में से आप 3 बाहर निकाल सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर और ये 3m हो जाएगा। देखिए m इंटीजर है और 3q स्क्वायर हमेशा एक इंटीजर होगा, तो 3m लिख सकते हैं।
ओके ठीक है, अब चलते हैं दूसरा केस लेते हैं। इफ a इक्वल टू 3q प्लस 1, ये वाला केस लेते हैं, ठीक है। a इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, जिससे हमें मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। 6q को इस तरफ से शिफ्ट कर दीजिए, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और प्लस 1 को छोड़ दीजिए, 9q स्क्वायर प्लस 6q में 3 बाहर कर दीजिए। तो आपको a मिल जाएगा 3m प्लस 1, और m क्या है, m है 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो आपको 3m प्लस 1 मिल रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। हमने a इक्वल टू 3q के लिए कैपिटल A निकाल दिया, और ये कैपिटल A क्या है, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और स्मॉल a है पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान रखेंगे इस चीज को नोट कर लेंगे। a है पॉजिटिव इंटीजर, कैपिटल A है स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, बच्चों हम लोग थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस है a इक्वल टू 3q प्लस 2, तो स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर a इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, जो कि देगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, ये दोनों एक साथ आ जाएगा। देखिए ये 9q स्क्वायर और 12q एक साथ रहेगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस 4 में आप 3 अलग कीजिए, 1 अलग कर दीजिए, यानी कि हम लोग ब्लू पेन से लिख रहे हैं इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ग्रीन पेन से लिखेंगे। वो है 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। देखिए ये 4 है, इसको आप 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो आप 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख दीजिए, और जरा सा इस पर ध्यान दीजिए। इसमें से अगर आप 3 बाहर निकालते हैं तो आप आंसर के नजदीक पहुंच जाइएगा। यहां से आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, और इसको आप 3m प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 3m प्लस 1 यहां आपको मिल रहा है, 3m प्लस 1 यहां आपको मिल रहा है, 3m आपको यहां मिल रहा है। और एक और बात ध्यान की है, वो है कि m है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और m क्या है, m बिलोंग्स टू इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए हम लोग इसको यहां पे नोट करते हैं। पहले केस में केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में आपने देखा स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है,
a equal to 3m। केस 2 में 3m+1 आएगा, केस 3 में। तो यहां पर जो दिया हुआ है कि 3m और 3m+1 आना चाहिए, वो यहाँ पे आ गया। सेकेंड और थर्ड केस में 3m+1 आ रहा है, फर्स्ट केस में ये 3m आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, और हमारा एक क्वेश्चन बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं और इसका बेसिस ओलंपियाड्स में भी यूज होता है। तो हम लोग इसी तरह क्वेश्चंस आगे पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।